Get ready to meet a legend whose voice is deeper than the ocean, whose style is sharper than a sword, and whose presence, well, just one word is enough. Shahanshah of Bollywood, a man who ruled the 70s, 80s, 90s, and still continues to shine today. People call him by many names. The angry young man, the Shahanshah, and Big B, etc. Any guesses? Yes, you got it right. The one and only Amitabh Bachchan. Are you all ready to hear that spirit come alive on stage? So now, students of 7D will present a powerful and entertaining tribute to the legend of Indian cinema, Amitabh Bachchan. Let the performance begin. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बादशाह की देख रहे हो किसी? चल शुरू हो जाओ। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, लिखाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, लिखाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे कमाल, इसी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। हाँ देखना है रे सोचाना, हाय रे रख दी निशानी पे जा। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे अब What
What an amazing performance! Let's give them a huge round of applause for capturing the aura of a true Bollywood legend. Get ready everyone, because the stage is about to be taken over by a legend who didn't speak much but made the whole world laugh out loud. Let me give you a hint. A man who taught us that even if life hits you with flying pan after pan, you should still smile, adjust your hat, twirl your stick and keep walking with style. Any guesses, Riddhi? Who is the king of silent comedy? Yes, of course, the one and only Charlie Chaplin. Presenting a hilarious and heartwarming tribute to this iconic legend by the talented students of class 7th B. Crazy sweet. applause for our talented performers who brought laughter, innocence and charm back to the stage. Are you ready for some energy? Because now we are celebrating the king of pop, Michael Jackson. A man whose incredible talent, electrifying energy and iconic dance moves changed the world of music forever. He is remembered as a legend who brought joy, rhythm and magic to the stage. And even today, his beats are alive in the hearts of millions. Get ready for a spectacular tribute
the students of Standard 7th F are coming forward to pay a rocking tribute to the legendary Michael Jackson. Dangerous. You know you want me. What an electrifying performance! Please give a big round of applause for this rocking tribute to the legendary Michael Jackson. As we reach the final part of our annual day celebration, let us pause and celebrate one more moment, the inspiration we received today. Today we witness the performance that reminds us of a legend, shaped history, served humanity, created art, and lived with courage. These stories are more than memories, they are lessons to carry forward. Now, in celebration of this iconic legend, students of 7th G presenting a choral as a tribute to our legends. Shining our
applause. And just like that, we reached to the end of today's journey, where every act celebrated the spirit of legends who lit the world with their vision, strength, and unstoppable determination. And with that, we have arrived at the end of all the performances. Gratitude is the healthiest of all human emotions. The more you express gratitude for what you have, the more likely you will have even more to express gratitude for. First and foremost, we offer our sincere thanks to the Almighty for having blessed this annual day program. We extend our sincere thanks to our respected Principal Madam, Mrs. Vishaka Sutar, for guiding, encouraging and appreciating us in all our endeavors. We also extend our heartfelt gratitude to Mr. and Mrs. Pratik Sutar and Mr. and Mrs. Pranit Sutar. We are thankful to all our trustee members for their constant interest in all our activities. We thank Madam Kiran Agrawal, Director of ILDG, for grooming the students. We thank our supervisors, Mrs. Usha Mudliyal and Mrs. Dimple Shah, for their massive support throughout our preparations for this day. We thank Madam Merchant, Head of the Department of English, for training the students to express themselves so confidently before such a large audience. We extend our thanks to our lovely and affectionate teachers who have been working so hard to make this occasion a truly memorable one. Special thanks to Sir Praveen for the lovely decorations you see all around. Special thanks to our music teacher, Sir Sandeep, for the melodious music. We also thank our non-teaching staff for their overwhelming support. Last but not the least, we thank all our wonderful participants who did their best to make the event truly an energetic and inspirational one. Thank you all once again for being such a wonderful audience. Now, I would like to request our beloved Principal Madam, Mrs. Vishaka Sutar, to kindly enlighten us with her words. Now, I would like to request our beloved Principal Madam, Mrs. Vishaka Sutar, to kindly enlighten us with her words. Yeah. It's 11:54. So a very good day to you, all of you. And you can say a good day, or you can say yet it is a morning. So a very good morning, dear parents. Loudly. A little bit more. Yes, good morning. Let's of course call the supervisor, Miss Usha, on stage. Miss Miskat of 7th A, Miss Nitisha, 7B, Miss Bhavna, 7C, 7th E, Miss Tabassum, 7th F, Miss Poonam, and 7C, Miss Priyanka. Arts and craft teachers, music sir. Yes? Yeah. Anybody else? Only that many? Yeah. Arts and craft teachers? Who did the props? Praveen sir, yeah. The props were wonderful. I think even teachers also have done the props, no? Yeah. Sorry? Jewelry and props you all made? Yeah. And the art and craft teacher, yeah. And the music sirs giving the music. Of course, all of you were one better than the other. Yes, so I can't say who was better than the other, but all were too excellent and too good, because to keep a theme like legends and to perform on that, it requires a lot of brainstorming, and you did that. So I think you'll are becoming better and better, and I can see some new faces also. And you gave a very good presentation.
I think all the detailings were good, and yes, of course. Yeah. So that was good. So thank you, my dear teachers, and we all really enjoyed the program, and I think that is enough for your motivation to do better and better as the years go back, because whatever you teach the children leaves an impact on their mind, and so you have given a very good impact by showing the legends, because legends are something, legends जो होते हैं वो मतलब एक इम्पैक्ट डाल के जाते हैं दुनिया में, और वो जनरेशन्स और जनरेशन्स उनको याद करते हैं। भले वो चले गए लेकिन जनरेशन से जनरेशन उनको याद, हमको याद आते हैं जो हमने उनको देखा नहीं, हम उनके टाइम पे बॉर्न नहीं हो गए हैं। सो टू कीप दैट अलाइव इज़ सो इम्पॉर्टेंट, टू praise them and to glorify them, उनको glorify करना is so important because they have contributed, उन्होंने बहुत immensely contribute किया है to planet Earth. So thank you so much for this theme. Thank you. Yeah, so that was a beautiful gesture, collecting my pics from Facebook and making a legend, and telling me a legend is something out of the way, because I don't think I can't compare myself to these legends over here. They have contributed so immensely, बहुत contribution है इनका और हमारे दिल में बसते हैं सब। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आज बच्चों ने बहुत अच्छा किया, और आप इतने लोग आए हैं, आप इतने पेरेंट्स आए हैं और आपके बच्चों को आपने इधर देखा, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी बच्चे करते हैं ना तो सिर्फ वो आपके लिए करते हैं, उनके लिए तो करते ही है, क्योंकि आज उनको चांस मिलता है डांस करने का, उनको चांस मिलता है मेकअप करने का, लिपस्टिक डालने का, आई शेडोज़ डालने का, बॉयज़ को अच्छा लगता है कि कॉस्ट्यूम्स में वो डांस करने वाले हैं, तो ये चांस, और प्लस कि मेरी मम्मी आने वाली है, मेरे डैडी आने वाले, तो ये जो जॉय देते हैं ना आप उनको, आपका कीमती वक्त निकाल के इधर आने का और वो देखने का, इसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपके लिए, क्योंकि दिस इज़ ओनली कि इतना समय हम दे सकते हैं बच्चों के लिए, नहीं तो हम बहुत बिजी रहते हैं, डैडी लोग बिजी रहते हैं काम में और मम्मी लोग बिजी रहते हैं खाना बनाने में, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, और ऑफ कोर्स बहुत सारा काम रहता है मम्मी लोगों को, तो इसके लिए रील्स बनाने में मम्मी लोगों को, तो यही थैंक्स कि आप इतना सब छोड़ के अपने आप को कंट्रोल करके आप आए और बच्चों के साथ आप उन्होंने उनका देखा, तो आप घर पे जाके पूछेंगे वो आपको कि कैसा था मम्मा मेरा प्रोग्राम, डैडी कैसा था मेरा प्रोग्राम, दैट इज़ व्हाट यू कैन गिव, दैट जॉय। एंड थैंक यू ऑल द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड, आई थिंक कोई ऐसा नहीं था कि पार्टिसिपेशन नहीं किया, सब ने, लास्ट क्लास जी क्लास था, वो लोगों को किसी में नहीं इंटरेस्ट था,
फिर उनको बोला खाली एक गाना गाओ आप लोग, और उन्होंने गाना गाया और सब हर कोई बच्चा सब इसमें पार्ट लिया। दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि हर कोई बच्चा पार्ट लेता है। कुछ तो भी कोई खड़ा रहता है, किसी को कुछ नहीं करना है तो खड़ा रहता है, अपना दिखाता है, लेकिन स्टेज पे आता है। सो दैट वाज वेरी गुड। आज बच्चों का बहुत अच्छा तैयारी किया। मैंने सुना है पार्लर भी गए थे बच्चे आज, और बहुत पैसा भी खर्चा हो गया है ना। कॉस्ट्यूम का नहीं होता है, लेकिन मेकअप का बच्चों को ये क्या, मैंने ऐसा सुना है कि एक बच्चे ने 1800 रुपया दिया है मेकअप के लिए। तो दैट इज़ ग्रेट, इट्स ग्रेट, क्योंकि या दिस इज़ व्हाट यू गिव दैट फॉर जॉय। आजकल के पेरेंट्स तो बहुत मतलब ऑब्सेशन है उनको बच्चों से, क्योंकि बच्चों ने मांग लिया तो दे दिया, ऐसे बच्चों ने बोल ही दिया और इधर आ गया चीज़। जैसे मेरे पोते का भी है ना, वो बोलता है ये चाहिए, तो ऐसा लगता है कब जाके मैं लेके आऊँ और दे दूँ। उनकी मम्मी डैडी सब ऐसे मतलब पूरा फट से देते हैं। सिर्फ ओनली व्हाट वी कैन गिव इज, जब भी वो बोलेगा चांद लेके आओ तो वी कैन गिव दैट। सो अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ टू गिव द चिल्ड्रन, एंड वी सैक्रिफाइस। हम इतना सैक्रिफाइस करते हैं कि नहीं, हमको नहीं मिला है तो बच्चों के लिए हमको देना है। पर कभी कभी थोड़ा सा यू हैव टू मेक द चिल्ड्रन, कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा पेशेंटली रुकाने का, इतने जल्दी नहीं देने का। यू हैव टू मेक देम अ लिटिल बिट नो द वैल्यू, उस चीज़ का वैल्यू उनको मालूम पड़ना चाहिए। कभी कभी बोलना चाहिए आपको कि पैसे नहीं है। जैसे हम बच्चों पेरेंट्स को पूछने के पहले हम सोचते थे मेरे मम्मी के पास पैसा रहेगा क्या, नहीं मैं नहीं मांगती, उसके पास पैसा नहीं है, हमको बहुत बुरा लगता था। तो ऐसे बच्चों को है ना वो फीलिंग जगाओ कि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि बच्चों को कोई फीलिंग नहीं है कि है क्या नहीं है, बस चाहिए मतलब चाहिए। नेक्स्ट इज आपके बच्चों का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उसी के लिए है कि आपके बच्चों को पढ़ाना है। वी हैव टू, एज यू नो, स्कॉलर स्कूल इज ओनली नोन फॉर एजुकेशन, गुड एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ना कि बस यू कैन नॉट, बहुत सारा मतलब सुबह जब भी आते हैं 6 में आते हैं बच्चे तो थोड़ा सा 5th तक है ना बहुत अच्छे रहते हैं, फिर 6, 7, 8, 9, 10th में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा करते हैं, दे टॉलरेट नहीं करते। कोई तो धक्का मारा तो भी है ना झगड़ा होता है, या फिर गाली देते हैं, फिर मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, वीडियो गेम ज़्यादा, मोबाइल गेम्स ज़्यादा खेलते हैं और ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन दीज आर प्रॉब्लम्स विच आर नेचुरल। आज का ज़माना ही ऐसा हो गया कि मोबाइल के सिवा पेरेंट्स को भी नहीं जमता है, मम्मी को भी नहीं जमता है और बच्चों को भी नहीं जमता है। और ये जो इतना जब कर रहे हैं बच्चे, तो ये सब रील्स की बदौलत है कि वो जल्दी सीखते हैं, क्योंकि रील्स देखते रहते हैं। लेकिन कितना देखना है ये आपके हाथ में है। अगर आप बोलते हैं 1 घंटा तो फिर 1 ही घंटा देना है उसको। आपके घर पे आता है बच्चा, बैग फेंकता है और पहले मोबाइल लेता है, या पहले टीवी डालता है, या पहले कार्टून डालता है, या फिर गेम खेलता है। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि जब भी वो इधर से उसको घर से आता है 6:30 बजे निकलता है, 7 बजे निकलता है, 7 to 1 बजे तक वो कंट्रोल में रहता है। उसको ना मोबाइल है, उसको मालूम है कि यहाँ वो कंडीशन है कि यहाँ मुझे मोबाइल नहीं मिल सकता है, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे खेलना है, कूदना है, मुझे सोशली एक्टिव रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, मेंटली एक्टिव रहना है। फिर घर पे जाके क्या होता है पता नहीं क्या होता है, फिर वो सुनता नहीं है आपका। इधर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमसे डरते हैं, हमको मतलब बिजी रहते हैं अपना पढ़ाई में। लेकिन एक बार घर पे आए तो आपका कंट्रोल होना चाहिए कि मेरा ये आपका मोबाइल है, वो खरीदा नहीं है बच्चे ने, आपका मोबाइल है, उसको परमिशन लेना है आपका। वो किसी के पेरेंट्स का तो ऐसे ही जाके फट से मोबाइल ले लेता है, माँ का पूछता भी नहीं है, परमिशन भी नहीं लेता है। मोबाइल इज़ योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो आपका पर्सनल चीज़ होता है, उसके लिए आपको लॉक होना चाहिए उसके अंदर आपका वाईफाई, घर पे वाईफाई है तो उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। आपको कभी बंद करना है, कभी चालू करना है, ये आपके हाथ में होना चाहिए। सो यू हैव टू हैव दैट कंट्रोल। वी कैन नॉट, हम आपको नहीं सिखा सकते, यू ऑल आर एडल्ट्स,
तो कैसे कंट्रोल करना, कितना टाइम मोबाइल देना बच्चों को, कितना टाइम खेलने के लिए देना, ये सब आपके ऊपर है। बाकी स्कूल में वी हैव नो प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होता है तो हम आपको बुलाते हैं, अगर कुछ होता है तो आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके घर पे आपका बच्चा सुनता नहीं है, या फिर आपके बहुत सारे बच्चे जो हायर क्लास में, ये छोटे मतलब 7th 8th के बच्चे पेरेंट्स को नहीं सुनते हैं, माँ को मारते हैं, ये वो बहुत सारा चीज़ आता है। सो यू हैव टू कम एंड कंप्लेन टू अस बिकॉज काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। सो दिस इज़ वॉट इज़ ऑल स्कूल इज़ अबाउट। बाहर जब भी जाते हैं, स्कूल छुट्टा है, आपने देखा है कितना प्रॉब्लम्स होता है रोड पे, बच्चे स्कूल छुट्टा है तो शॉप्स में जाते हैं, बाहर वड़ा पाव खाते हैं, कुछ भी वेफर्स, लेज एंड ऑल एम्प्टी कैलोरीज, जंक फूड खाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। हमारे तो टीचर्स और स्कूल के सर्स भी सब, रतन टॉकीज से लेके ये पूरा इधर पीछे भी हम जाते हैं, आई थिंक टिल द नाका हमारा पूरा सेटिंग रहता है, सब खड़े रहते हैं कि बच्चे बराबर जाए, झगड़ा ना करे। क्योंकि आजकल स्कूल में मेरी सिस्टर्स भी है, थाना में प्रिंसिपल है और टीचर क्लासेस चलाती है, और मेरी फ्रेंड्स भी है पूना में, बॉम्बे में प्रिंसिपल्स है स्कूल में। बोलते हैं आजकल बच्चे बहुत झगड़ा करते हैं, हर बाजू उनको वही प्रॉब्लम है कि बच्चे झगड़ा करते हैं। मोबाइल, रील्स, इंस्टा, स्नैपचैट तो है ही, लेकिन ज़्यादा झगड़ा मतलब टॉलरेशन नहीं है उनको, दे डोंट हैव टॉलरिज्म, टॉलरेट नहीं करते हैं। किसी ने मारा, किसी ने चिढ़ाया, किसी ने ये किया, तो इधर तो हर दिन सुबह जब भी आप बच्चे आते हैं तो पहले मिस किरण मैम जब भी बोलती है माइक के ऊपर, प्रेयर के बाद 10 चीज़ बोलती है रोज, हर 10 चीज़ परपेचुअली मतलब रोज कंपल्सरी बोलती है। डू नॉट हिट, डू नॉट स्नैच एनीबडीज टिफिन, डू नॉट यूज अब्यूजिव वर्ड्स, do not do not chew gum, chewing gum is not allowed, then respect your teachers, respect your elders, ऐसे 10 पॉइंट रोज बोलती है। फिर भी कभी कभी मेरे पास आते हैं कि मैडम झगड़ा हो गया, ये लोग ने मारा, कल किसी ने बच्चे ने बर्थडे बम्प दिया, बर्थडे को बोलते हैं ना बर्थडे बम्प, बर्थडे रहेगा किसी का तो उसको मारते, तो इतना मारा उसको, बेचारा रो रहा था, इतना मारा उसको। फिर वो उनको सब बच्चों को मेरे ऑफिस में बिठाया उधर, और फिर उनको पनिश किया मैंने कि ऐसे नहीं मार सकते तुम, किसी को इतना दुख नहीं दे सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को पेन नहीं कर सकते, मतलब काउंसलिंग करना पड़ता है। सो यू ऑल्सो हैव टू टॉक टू द चिल्ड्रन। और या नथिंग मोर एल्स, आई थिंक ऑल द सुपरवाइजर्स coming from various schools and our school and college ma'am, Pallavi ma'am, thank you all of you for coming and encouraging the supervisors and the teachers. I think this is what we require because children ने जो program किया है वो subconsciously उनके mind में जाता है and it will remain till the end. Till I think it will remain in their head till the end of their journey to planet Earth. So I think it will be it has created an impact in subconscious. जब भी वो subconscious में है, जब भी वो बड़े होएंगे, बूढ़े होएंगे, तो भी उनको याद रहेगा, ये legends याद रहेंगे, ये songs जो उन्होंने गाया वो याद रहेगा, उन्होंने जो भी डिपिक्ट किया वो याद रहेगा। So that is what all is education जो है वो it is all about things what we have to portray to the children. Of course बच्चों को प्रोग्राम के सिवा, पढ़ाई के सिवा भी और भी डेवलपमेंट है, वो है फिज़िकल डेवलपमेंट। जो मैं देख रही थी बच्चे जब भी कौन सा डांस किया उन्होंने, तो बच्चे थक गए थे, हाफ रहे थे, बिकॉज वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा खेलते नहीं हैं। हमारे टाइम में हम बचपन में बहुत खेलते थे, ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से, शाम को पूरा खेल के थक के खाना खा के फट से 9 बजे सो जाते थे, इतने हम
थक जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे थकते ही नहीं है, वो 12-1 बजे तक जगे रहते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे उनको गेम्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए, योगा, जुम्बा या कुछ डांस फॉर्म्स या स्पोर्ट्स के लिए डालना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे इंक्रीज देयर स्टेमिना एंड दे बिल्ड देयर मसल्स एंड देयर बोन्स। तो ये एक ध्यान रखना कि स्कूल में तो खेलते ही रहते हैं, कैलोरीज आप अगर नहीं भी कुछ किया, अगर आप पूरा दिन अगर थोड़ा बैठे, खड़े हो गए, हाथ उठाया, पैर को झटका थोड़ा सा, तो भी हमारा दिन में अगर हम वॉकिंग नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो भी हम 400 कैलोरीज बर्न करते हैं। अब समझे, अगर हम बैठेंगे तो कैलोरीज बर्न होना चाहिए एटलीस्ट 800 मतलब 400 कैलोरीज बर्न होना चाहिए। आपको भी बोल रही हूँ कि चलने से या फिर डंबल उठाने से या कुछ जंपिंग करने से या जुम्बा करने से या डांस करने से और 400 बर्न होना चाहिए, क्योंकि आप खाते हैं 1600 कैलोरीज। अगर आप नहीं खाएंगे तो नेचुरली एज यू गो बिग यू विल गेट डायबिटीज़ एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ ओबेसिटी का प्रॉब्लम होएगा। तो ये सब आपके बच्चों को, इधर स्कूल्स में स्पोर्ट्स होता है लेकिन हर दिन पीटी नहीं होता है, तो very important to have some physical. Next year I hope we try and bring some kind of dance forms and also that the children come and at least have at least maybe half an hour they will do some kind of exercise. Every day every child has to do something so that they will burn calories and they will at least try to make up their bones and their muscles. So this is what is there. I think next year children are going to 8th. One more step ahead they will go to create a little bit more mischief. Yes. Yeah, so this is and I think now all the programs are over. If you have to go for picnic next year, not this year, because this year was not good, so next year you can send a plan for picnics. I think 2025 was not a good year, so we did not keep picnics. I said keep it in 2026. And next year fees will be increasing by 15%. Every 2 years we increase the fees. And nothing more. I think see the I think children know Michael Jackson. बच्चों को मालूम है माइकल जैक्सन, आपको मालूम है बच्चों को? How many children know Michael Jackson? Yes, children. Yeah, acha. Yeah, good. Yeah. So they see that's what it is. That thank you because very good, nice. Legends was good. Yes, ma'am. Kiran ma'am also. You know Kiran ma'am कितना रहती है आगे पीछे उधर किधर तक रहती है, लकड़ी लेके बस वालों के पीछे, रिक्शा वालों के पीछे, पेरेंट्स के पीछे. Thank you ma'am. Because of you there's so much of more discipline in the school. Yeah, next year I think we will be having more of in programs, मतलब in education, मतलब जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, AI चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, कोडिंग चल रहा है, और आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी, अब ये प्रोग्राम्स ज़्यादा चलेंगे स्कूल में. आई थिंक विद कंप्यूटर्स, ओनली कंप्यूटर्स नाउ इट इज़ बिकम gone era, but now more is come is AI, क्योंकि AI has taken up very severely. ये तो 3-4 दिन पहले कोई एक होटल में बैठी थी, किसी को देखने को गई थी, तो मेरे को भूख लगी थी तो मैं एक होटल में गई, मैं देखी अच्छा होटल है, मैंने खाने को बैठ गई और मैं अपना इंस्टाग्राम खोला, और जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला, आई थिंक AI इज सो स्मार्ट, लाइक दे नो दैट आई डोंट नो व्हाट, बट इमीडिएटली द सेम होटल का एडवर्टाइजमेंट आया, उसका रील आ गया. मतलब हाउ दे नो एवरीथिंग अबाउट अस, हम क्या कर रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं. बी केयरफुल, एवरीबडी इज ऑन. Yes, everybody is, AI knows everything about us, where we go, what we do, what we see, what we watch,
who we call, what we do. So be careful. So children have to know how AI works and how the coding, how you can do coding and how you can do programming. तो ये प्रोग्राम सब बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है. So we'll be having a lab and we'll be having a robotic lab, a coding lab and a AI lab, so that children can get all these facilities and learn what is what. So नथिंग मोर टू टेल. इफ़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है ये स्लो है, इसको काउंसलिंग लगता है, ज़रूर आना हमको मिलने के लिए एंड वी विल सी दैट वी विल हेल्प, बिकॉज दैट इज़ आवर जॉब. हर बच्चे को, अगर वो 6 में है, 7th में, 8th में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, उसको रीडिंग आना चाहिए. अगर आपको लगता है आपका बच्चा रीडिंग नहीं करता है तो प्लीज़ कम एंड टेल अस. हमको तो सब हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन जब आप सामने से आते तो हमको अच्छा ऐसा लगता है कि यस यू आर इंटरेस्टेड. हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल मांग रहा है, जिद कर रहा है, तो एक बुक लेके आओ, एक छोटा बड़ा फॉन्ट वाला स्टोरी बुक लेके आओ, उसको बोलो ये पढ़ो, 1 पेज या 2 पेज या 1 चैप्टर पढ़ो, फिर मैं मोबाइल देता हूँ. बार्गेन करो कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, और बुक की आदत रखो पढ़ने के लिए. स्कूल की मैगज़ीन है, आती है आपको, कौन सी मैगज़ीन आती है 7th स्टैंडर्ड को? यंग एक्सप्लोरर. वो बोलो उसको कि 1 पेज पढ़ के मेरे को बताओ, फिर मैं मोबाइल देता हूँ, क्योंकि रीडिंग इज़ लीडिंग. तो ये सब करने से ही आपके बच्चों का आई थिंक डेवलपमेंट सही तरह से होगा. सो थैंक यू सो मच. यू ऑल केम ओवर हियर आई थिंक, एंड डू एनकरेज योर चिल्ड्रन, और घर पे जाके बताओ उनको और अप्रिशिएट करो. थैंक यू अगेन. या I think if I missed like the Maushis, Mamas, the cameraman and Sadiq for bringing the screen and putting, I think many of you, thank you so much. Kindly stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की